کاروبار، زراعت اور آئی ٹی کے شعبوں سے متعلق پری بجٹ کانفرنس کل اسلام آباد میں ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کانفرنس میں مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوں گے۔ کانفرنس کا مقصد نجی کاروباری شعبے کو متحرک کرنا اور ان کی قیمتی تجاویز لینا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور تعظیم ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ مودی حکومت بھارت میں جتھوں کو تشدد پر اکسانے کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی اور نفرت کے فروغ کی سوچی سمجھی حکمت عملی پر کاربند ہے۔ بی جے پی رہنما کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ بھارتی قیادت کے توہین آمیز اور متنازع بیانات سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ ایسے بیانات بھارت میں اسلام و فوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان کے عکاس ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی بی جے پی رہنماؤں کے توہین آمیز بیانات کی شدید مذمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انتہا پسند ہندو رہنماؤں کے بیانات ناقابل برداشت ہے۔ عالمی برادری بھارت میں بڑھتے اسلام فوبیا اور خراب صورتحال کا نوٹس لے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ بھارتی حکمران بی جے پی کے ترجمانوں کے گستاخانہ بیانات کا معاملہ سعودی عرب، OIC اور کئی عرب ملکوں کی شدید مذمت۔ سعودی عرب تمام مذاہب کی مقدس شخصیات کی توہین کو مسترد کرتا ہے۔ اسلام کے خلاف ہر طرح کی ہرزہ سرائی اور توہین آمیز اقدامات کا سختی سے نوٹس لیں۔ OIC کا بھارتی حکام سے مطالبہ۔ سربراہ پرائم منسٹر اسٹریٹجک ریفارم سلمان صوفی کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ، مسافروں کے ذاتی سامان کی ضبطگی کی شکایات، مسافروں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ۔ سلمان صوفی کی کسٹمز حکام کو سامان کی وصولی سے معائنے تک سہل طریقہ کار اپنانے کی ہدایت، کسی بھی ذاتی تحائف پر کھانے کو ضبط نہ کیا جائے۔ لاہور سے پہلی حج پرواز کے ذریعے 200 عازمین روانہ۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے رخصت کیا۔ سرکاری اسکیم کے تحت اسلام آباد سے بھی پہلی حج پرواز کی روانگی۔ کوئٹہ سے بھی 164 عازمین حج کو لے کر پہلی حج پرواز روانہ۔ پاکستان سے 106 حج پروازوں کے ذریعے 32,000 عازمین حج کو سعودی عرب پہنچایا جائے گا۔ ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر، محکمہ موسمیات کے آئندہ دنوں میں درجہ حرارت میں اضافے کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، سندھ اور مشرقی بلوچستان میں دن کا درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہے گا۔ جیکب آباد 49، سبی اور دادو میں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں پنڈتوں کی ٹارگٹ کلنگ، مودی حکومت کی جدوجہد آزادی کشمیر کو بدنام کرنے کی سازش۔ مقصد مقبوضہ ریاست میں مسلمانوں کی نسل کشی کی راہ ہموار کرنا ہے۔ حریت قیادت اور مذہبی رہنماؤں کی شدید مذمت۔ بھارتی فوج کی جانب سے مشرقی پنجاب میں آپریشن بلو سٹار اور سکھوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کے 38 سال۔ فرانس میں مقیم سکھ کمیونٹی کا احتجاجی مظاہرہ۔ بھارت سے مکمل آزادی اور خالصتان کے قیام کا مطالبہ۔ عالمی اداروں سے بھارت میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر نوٹس لینے کی اپیل۔ برطانیہ کا یوکرین کو M270 راکٹ فراہم کرنے کا اعلان۔ یہ راکٹ سسٹم 80 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یوکرین کو میزائلوں کی فراہمی کے بعد روس یوکرین میں ان اہداف کو بھی نشانہ بنائے گا جنہیں اب تک نشانہ نہیں بنایا گیا تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن۔ نائجیریا کے ایک چرچ میں مذہبی اجتماع کے موقع پر مسلح افراد کی فائرنگ، 50 افراد ہلاک۔ جنوب مغربی ریاست اندو کے کیتھولک چرچ میں فائرنگ کے بعد دھماکے۔ حملہ اس وقت کیا گیا جب لوگ عبادت کے لیے جمع ہوئے تھے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सदफ अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों की तफसील शामिल करते हुए आपको बताते चले, कारोबार, ज़राअत और IT के शोबों से मुतालिक प्री बजट कॉन्फ्रेंस कल इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद निजी कारोबारी शोबे को मुतहर्रिक करना और उनकी कीमती तजावीज़ लेना है। कॉन्फ्रेंस मारूफ ताजरों और माहिरीन को IT, ज़राअत, टेक्सटाइल और कारोबार समेत बरामदी शोबों से मुतालिक सिफारिशात पेश करने का मौका फराहम करेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि तमाम मुसलमान नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम की मोहब्बत और नामूस के लिए अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि BJP रहनुमा की तरफ से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की शदीद मसम्मत करते हैं। बारहा कह चुके हैं, फैशिस्ट मोदी की क़यादत में भारत मजहबी आज़ादियों को पामाल कर रहा है और वहाँ मुसलमानों पर शदीद जुल्म सितम जारी है। वज़ीर आज़म ने दुनिया से भारतीय इंतहा पसंदी का नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से बढ़कर और कुछ नहीं है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदुस्तान के BJP रहनुमाओं के तौहीन आमेज बयानात की सख्त तरीन अल्फाज में मसम्मत की है। सदर ममलकत ने कहा है कि तौहीन आमेज और मुतनाज़ बयानात से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। ऐसे बयानात हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान के अक्कास हैं। इस हवाले से महज पार्टी अहदेदारों को मुअत्तल करना और निकाल देना काफ़ी नहीं, बल्कि BJP को अपने इंतहा पसंद और फैशिस्ट हिंदुत्व नज़रिए से किनारा कशी इख्तियार करनी होगी। सदर ने कहा कि मोदी के नफरत अंगेज़ हिंदुत्व फ़लसफ़े के तहत भारत अपनी तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादियों को पामाल कर रहा है और उन पर बिला इम्तियाज़ जुल्म कर रहा है। इस तरह के इस्लामोफोबिक बयानात की बिला रोक टोक इजाज़त देना इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संगीन ख़तरा है। ऐसे बयानात मज़ीद तासुब, तशद्दुद और नफ़रत का बाइस बन सकते हैं। आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमें भारत में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया और मुनज़्ज़म मजहबी जुल्म व सितम का संजीदगी से नोटिस लें और रोकथाम के लिए फ़ौरी इक़दामात उठाएं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी BJP रहनुमाओं के तौहीन आमेज़ बयानात की शदीद मसम्मत की है। वज़ीर ख़ारिजा ने अपने ट्वीट में कहा कि BJP रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात से मुस्लिम उम्मा के जज्बात को ठेस पहुँची है। इंतहा पसंद हिंदू रहनुमाओं के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बयानात नाकाबिल कबूल हैं। वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी भारत में हिंदुत्व और बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए इक़दामात करे। भारतीय हुक्मरान जमात BJP के तर्जुमानों के गुस्ताखाना बयानात के मामले पर इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी की गई। पाकिस्तान ने भारतीय नाज़िमुल उमूर से BJP के 2 सीनियर ओहदेदारों के तज़हीक आमेज़ बयानात की मज़म्मत करते हुए सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। नाज़िम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि BJP रुकन के तौहीन आमेज़ कलमात पर तमाम मुसलमानों को शदीद दुख हुआ है। अपने ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि ऐसे बदज़बान, एहसास से आरी और हदों से बढ़ जाने वाले निशान इबरत बनते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद था, है और हमेशा रहेगा। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा शाफ़े हुसैन ने आज लाहौर में पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज से मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के मामलात और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की शदीद मसम्मत की गई। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि BJP की खातून रुकन की इस हरसा सराई से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि किसी भी महज़िब माशरे में अंबिया किराम की शान में गुस्ताखी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का बयान मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम दुनिया में भारतीय मसनूआत के बाइकआउट की मुहिम शुरू हो गई है। पूरा आलम इस्लाम हालत इस्तराब में है।
مختلف عرب اسلامی ممالک میں ہندوستانی سفراء کو بلا کر احتجاج ریکارڈ کیا جا رہا ہے. عرب اسلامی دنیا میں اور باقی بھی جگہوں پر ہر امن پسند ہندوستانی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کر رہا ہے. ایسے وقت میں وزیر اعظم پاکستان محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو جذبات اور احساسات کا اظہار کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ پورے عالم اسلام بلکہ پورے عالم کے امن پسندوں کے جذبات کی ترجمانی ہے. ہمارے لیے ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے. بی جے پی رہنماؤں کے توہین آمیز بیانات، سعودی عرب اور OIC اور کئی عرب ملکوں کی شدید مذمت. سعودی عرب، اسلامی تعاون تنظیم، OIC، قطر، کویت اور دیگر عرب ملکوں نے انڈیا کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی ایک رہنما کی جانب سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تکلیف دہ تبصرے کی شدید مذمت کی ہے. سعودی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ سعودی عرب بی جے پی کی ترجمان کی جانب سے پیغمبر اسلام کی توہین پر مشتمل بیان کی مذمت کرتا ہے. سعودی عرب نے دین اسلام کی مقدس ہستیوں کی توہین کو ہمیشہ مسترد کیا ہے، آج بھی یہ موقف ہے اور آئندہ بھی یہی رہے گا. سعودی عرب تمام مذاہب کی مقدس شخصیات اور مذہبی علامتوں کی توہین کو مسترد کرتا ہے. قطر کی وزارت خارجہ نے دوحہ میں انڈیا کے سفیر دیپک متل کو طلب کر کے انڈیا سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے. قطر کی وزارت خارجہ نے انڈین سفیر کو قطر کے رد عمل کا سرکاری نوٹ بھی حوالے کیا، جبکہ کویت نے بھی اس معاملے پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کویت میں انڈین سفیر کو طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. OIC نے انڈین حکام سے کہا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف ہر طرح کی ہرزہ سرائی اور توہین آمیز اقدامات کا سختی سے نوٹس لیں. اشتعال پھیلانے والوں اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے اور تشدد کے جرائم کرنے والوں کو عدالت میں پیش کریں اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کا احتساب کیا جائے. بی جے پی رہنما کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے متعلق گستاخانہ بیان پر اسپین میں بسنے والی پاکستانی کمیونٹی بھی شدید غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے. پاکستانی کمیونٹی نے گستاخانہ بیان کی مذمت کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کیا. بھارت کے لیڈر نورپور شرما جس کا تعلق بی جے پی حکومتی پارٹی سے ہے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. اس نے لاکھوں اور کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے. بی جے پی کے رہنماؤں نے اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے مسلمانوں کے دل کو شدید صدمہ پہنچا ہے، اور ہم تمام اسلامی ممالک سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ مشترکہ کوئی لائعمل اختیار کیا جائے جس سے ایسے گستاخانہ رویوں کو روکا جا سکے. میں اپنی پوری وومن ونگ کی طرف سے اس بات کی پرزور مذمت کرتی ہوں اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ رسپیکٹیبل ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے مذہب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. آپ کے مذہب کے بارے میں اگر اس طرح سے کوئی الفاظ استعمال کرے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ روڈ ٹو مکہ حج آپریشن کا آغاز ہو گیا. عازمین حج کی مبارک سفر پر روانگی. لاہور سے پہلی حج پرواز رات 1:55 پر 200 عازمین کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئی. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے ایئرپورٹ پر عازمین کو رخصت کیا. اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا کہ میں حج پر جانے والے عازمین کو مبارکباد دیتا ہوں. حکومت پاکستان اور سعودی حکومت کا بہترین اقدامات پر شکریہ ادا کرتے ہیں. حکومت پاکستان تمام عازمین کو ہر قسم کی سہولت دے گی. اسلام آباد سے پہلی حج پرواز 3:30 بجے روانہ ہوئی، جبکہ دوسری پرواز رات 8:30 بجے روانہ ہوگی. ملتان سے نجی فضائی کمپنی کی پہلی پرواز 4:30 بجے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوگی. 106 پروازوں سے 32,000 عازمین کو سعودی عرب پہنچایا جائے گا. کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے پہلی حج فلائٹ 164 عازمین حج کو لے کر روانہ ہو گئی. وفاقی وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورکس مولانا عبدالواسی نے عازمین حج کو رخصت کیا. سرکاری حج اسکیم کے تحت بلوچستان سے اس سال 1,303 عازمین حجاز مختص پہنچیں گے. کوئٹہ سے حج فلائٹ آپریشن 13 جون تک جاری رہے گا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بنگلہ دیش میں آتشزدگی کے واقعے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا ہے. اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے بنگلہ دیش کی حکومت اور عوام کے ساتھ دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے.
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स के सरबराह सलमान सूफी ने लाहौर एयरपोर्ट का दौरा किया ताकि मुसाफिरों के ज़ाती सामान की ज़ब्तगी की शिकायत और मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया जा सके। सलमान सूफी ने कस्टम्स हुकाम को हिदायत की कि वो सामान की वसूली से लेकर मुआयने तक सहल तरीक़ेकार अपनाएं ताकि मुसाफिरों को आसानी हो। उन्होंने मुसाफिरों के साथ लाए गए किसी भी ज़ाती तहाइफ व खाने को ज़ब्त न करने की भी हिदायत की। स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स के सरबराह ने मुसाफिरों को फौरी तौर पर बच्चों को स्ट्रॉलर्स फराहम करने और माजूर मुसाफिरों के लिए खुसूसी कमरा तैयार करने की भी हिदायत की, जहां परवाज में ताख़ीर होने पर वो आराम कर सके। सलमान सूफी ने इस मौके पर कहा कि नए और बेहतर एयरपोर्ट ऑपरेशन रिफॉर्म का जल्द ऐलान किया जा रहा है। उन्होंने पोर्टर्स की तादाद बढ़ाने पर भी हिदायत जारी करते हुए कहा कि एविएशन डिवीजन के साथ मिलकर एयरपोर्ट को नए तर्ज पर चलाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है ताकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक मुसाफिरों को बेहतरीन खिदमत फराहम की जा सकें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरी की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग के तरीक़ाकार में तब्दीली के खिलाफ दरखास्त वापस ले ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला ने दाऊद गजनवी एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि पिछले इलेक्शन में क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पोस्टल बैलेट के जरिए वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया। आगे बढ़ते हैं और अभी आपको आगाह करें कि सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 7 दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर बन्नू के इलाके जानी खेल और शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशंस किए। कार्रवाइयों में जानी खेल में 5 और शिमाली वज़ीरिस्तान में 2 दहशतगर्द मारे गए। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की गैर कानूनी तौर पर नजरबंद सीनियर हुर्रियत रहनुमा शबीर अहमद शाह ने कहा है कि नामालूम हमलावरों की तरफ से कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग के लिए एक गहरी साजिश है, जिसका मकसद कश्मीरी मुसलमानों की नस्ल कुशी की राह हमवार करना है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक शबीर अहमद शाह ने नई दिल्ली के बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से एक बयान में कहा कि वादी कश्मीर भर में पंडित अक़लियती बरादरी के खिलाफ हालिया तशद्दुद इस मंसूबे का इरादा है जिसके तहत 1989 में जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को बदनाम करने के लिए पंडितों को मकबूजा वादी से निकाला था। श्रीनगर में मजहबी रहनुमाओं का एक इजलास हुआ जिसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की गई। करारदाद में बीजेपी हुकूमत की तरफ से आज़ादी पसंदों पर कश्मीरी पंडितों के कत्ल का इल्जाम लगाने की साजिश की मजम्मत की गई। भारतीय पुलिस ने जम्मू खित्ते के रामबन, उधमपुर और किश्तवाड़ अजला के मुख्तलिफ इलाकों में घरों पर छापों के दौरान 4 नौजवानों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल रेजिस्टेंस मूवमेंट और दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों की तरफ से बीजेपी की पॉलिसियों के खिलाफ श्रीनगर और दीगर इलाकों में पोस्टर चस्पा किए गए हैं। उन्नीस सौ चौरासी में भारतीय फौज के मशरकी पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार और सिखों के मुकद्दस मकामात की बेहुरमती करने को 38 साल मुकम्मल होने पर फ्रांस में मुकीम सिख कम्युनिटी ने एहतजाजी मुजाहरा किया और भारत से मुकम्मल आज़ादी समेत खालिस्तान के क़याम का मुतालबा किया। तफसील जानिए कंजा नकवी की इस रिपोर्ट में। कुछ मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चलें कि मलिका एलिज़ाबेथ की ताजपोशी के 70 बरस मुकम्मल होने पर बरतानिया भर में तकरीबात जारी हैं। मलका की ताजपोशी की प्लाटिनम जुबली की तफसील बताएंगे अली गुल। शुक्र है रिपोर्ट निकल आई है। के बाहर मुख्तलिफ शाहराहों और इलाकों में बैंड्स परफॉर्म कर रहे हैं और जश्न का समा है, जबकि मलका एलिज़ाबेथ ने बकिंगम पैलेस की बालकनी में खड़े होकर अवाम के नारों का जवाब दिया। जश्न की तकरीबात में बरतानवी शहरी अपने अपने अंदाज में मलका को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। 6 फरवरी 1952 को अपने वालिद जॉर्ज हश्तम की वफात के बाद तख्त संभालने वाली एलिज़ाबेथ मुल्क में इस्तेहकाम की अलामत बनकर उभरी। मलका एलिज़ाबेथ ने इस आलमी सियासी मंजरनामे की तब्दीली के बाद दुनिया को कागज से कंप्यूटर पर मुंतकिल होने का वक्त भी देखा और अब वो जमाना है कि जब करोड़ों तारकीन वतन की वजह से बरतानिया एक कसीरुल सकाफती माशरा बन चुका है। बरतानिया पर सबसे ज्यादा राज करने वाली मलका एलिज़ाबेथ के 4 बच्चे, 8 पोते पोतियां और 12 पड़पोते पोतियां हैं। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक 1500 फौजी जवान, 400 साजिंदे, 250 घोड़े और 70 छोटे जहाज रंगारंग तकरीब में शामिल हैं। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।
برطانیہ نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کا M270 راکٹ فراہم کرے گا۔ یہ راکٹ سسٹم 80 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی فراہمی کے بعد روس یوکرین میں ان اہداف کو بھی نشانہ بنائے گا جنہیں اب تک نشانہ نہیں بنایا گیا تھا۔ یوکرین کے علاقے لوہانسک کے گورنر نے کہا ہے کہ یوکرین کی افواج نے سیورو ڈونیسک شہر میں روسی افواج کا حملہ پسپا کر دیا ہے اور اب شہر کے آدھے حصے پر یوکرین کا قبضہ ہے۔ سرکاری روسی میڈیا کے ایک صحافی نے خبر دی ہے کہ مشرقی یوکرین میں روس کے میجر جنرل رومن لڑائی میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اگلے مورچوں پر تعینات فوجیوں سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے لوہانسک اور ڈونیسک کا بھی دورہ کیا ہے۔ ناظرین، 1984 میں بھارتی فوج کے مشرقی پنجاب میں آپریشن بلو سٹار اور سکھوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کرنے کو 38 سال مکمل ہونے پر فرانس میں مقیم سکھ کمیونٹی نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور بھارت سے مکمل آزادی سمیت خالصتان کے قیام کا مطالبہ کیا۔ تفصیل بتا رہی ہیں کنزا نقوی۔ پیرس میں ہونے والے مظاہرے میں سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے مرد، خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جس پر آزادی کے حق اور سکھوں کے بے رحمانہ قتل عام کے خلاف نعرے درج تھے۔ شرکا نے مودی کی ہندوتوا پالیسیوں کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت ایک ہندو انتہا پسند ریاست ہے۔ سکھوں کے ساتھ دہائیوں سے بھارت میں زیادتی ہو رہی ہے۔ سکھوں کا قتل اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہندوستان کی حکومت نہ صرف آج ظالم ہے، آج قاتل ہے، بلکہ روز ازل سے اس وقت تک قتل و غارت کا بازار گرم کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ انسانیت کا قتل اگر دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ ہندوستان کے اندر ہوتا ہے۔ مقررین نے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ فاشسٹ مودی کی جانب سے بھارت میں اقلیتوں اور سکھوں کا قتل عام بند کر کے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر نوٹس لیا جائے۔ نائجیریا کے ایک چرچ میں مذہبی اجتماع کے موقع پر مسلح افراد کی فائرنگ سے 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی میڈیا نے بتایا کہ مسلح افراد نے نائجیریا کے جنوب مغربی ریاست آندھرا کی کیتھولک چرچ میں فائرنگ کے بعد دھماکے بھی کیے۔ مسیحی برادری کی عبادت گاہ پر دہشت گردوں کے حملے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب لوگ اتوار کی صبح عبادت کے لیے گرجا گھر میں جمع ہوئے۔ ہلاک و زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ فی الحال کسی بھی شدت پسند گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ وسطی فلپائن میں ایک آتش فشاں کوہ بلسن نے لاوا اگلنا شروع کر دیا ہے اور اس کا دھواں آسمان میں 1 کلومیٹر تک پھیل گیا ہے۔ آتش فشاں کے فعال ہونے کے بعد حکام الرٹ ہو گئے ہیں اور رہائشیوں کو ہوشیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آتش فشاں کے پھٹنے سے پہلے 24 گھنٹوں میں 77 زلزلے ریکارڈ کیے گئے۔ یہ پہاڑ فلپائن کے 24 آتش فشانوں میں سے ایک ہے۔ یہ آتش فشاں آخری بار جون 2017 میں پھٹا تھا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے ایک بیان میں یونان پر ایرانی تیل چوری کرنے کا الزام عائد کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ گزشتہ ماہ یونانی آئل ٹینکروں کو اسی کے رد عمل میں پکڑا گیا تھا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خلیج عمان میں 27 مئی کو 2 یونانی آئل ٹینکرز کو پکڑ لیا تھا۔ اس سے پہلے اپریل میں یونان نے روسی پرچم والے ایک بحری جہاز کو پکڑا تھا جس پر 1,15,000 ٹن ایرانی خام تیل لدا ہوا تھا۔ جنوبی کوریا اور امریکہ نے 8 میزائل فائر کیے ہیں۔ یہ میزائل شمالی کوریا کی طرف سے میزائل ٹیسٹ کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ جنوبی کوریا کی فوج نے کہا ہے کہ یہ اقدام شمالی کوریا کی اشتعال انگیزی کے جواب میں اتحادیوں کی تیاری کا اظہار ہے۔ اس سے پہلے شمالی کوریا نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایک ہی دن میں کم فاصلے تک مار کرنے والے 8 بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا تھا۔ ایک وقت میں اتنی بڑی تعداد میں میزائلوں کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم اور خشک رہے گا۔ گلگت بلتستان میں بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ گزشتہ روز زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد میں 49، سبی اور دادو میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद गर्मी पड़ रही है, जिससे मामूलात ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। लाहौर से गर्मी की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बता रही हैं अस्का मकसूद। अस्का जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? पंजाब समेत पूरा लाहौर आजकल शदीद गर्मी की लपेट में है और वैसे भी जून के महीने का आगाज़ हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पीर के दिन जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। माहिरीन सेहत का कहना है कि घरों से कम बाहर निकलें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। माहिरीन का कहना ये भी है कि बाहर के मशरूबात का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि ये जो बाज़ारी मशरूबात हैं ये सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। शदीद गर्मी की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है, जैसा कि हीट स्ट्रोक और गैस्ट्रो जल्दी इमराज में भी इजाफा देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया इसका मकसूद। नाज़रीन आगे बढ़ें, आपको बताएं सूबा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता एक माह से हीट वेव जारी है। कुछ रोज़ मौसम में तब्दीली के बाद दोबारा सूरज की तपिश से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत के बाद बिजली की लोड शेडिंग में भी लोड मैनेजमेंट के तहत कमी की गई है। गर्मी से नहरी पानी की किल्लत के बायस फसलें भी मुतासर हो रही हैं। मज़ीद तफसील हमारे नुमाइंदे शहराज अली से। शहराज बताइएगा, क्या सूरत हाल है? सिंध के कई शहर आज भी शदीद गर्मी की लपेट में हैं और हब्स भी है और मुख्तलिफ इलाकों में जो सूरज की तपिश है वो भी शदीद है। लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है और ख़ास करके आज भी टेम्परेचर जो है वो जैकबाबाद में सबसे ज़्यादा है। जैकबाबाद, लाड़काना, दादू और नवाबशाह ये वो अजला हैं जिसमें टेम्परेचर 49 तक जाके छूता है। 10-12 दिनों में बहुत गर्मी है सर। मजदूरी करना, काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है सर। दिन ब दिन टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, काम में बहुत मुश्किलात हो रही हैं। ऑफिस आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। घर पर जाओ तो लाइट भी नहीं होती है। गैस्ट्रो के अमराज में भी जो है काफ़ी इजाफा नज़र आ रहा है और जब लोड शेडिंग का जो दौरानिया था उसमें भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर जो है मुख्तलिफ शहरों में कमी की जा रही है। हेस्को की बिजली की तलब 1400 मेगावाट है, औसतन 750 मेगावाट बिजली मिल रही है। यूँ 50% बिजली की कमी है। इस वक्त शहरों में 6 से 8 घंटे लोड मैनेजमेंट की जा रही है। ज़्यादा लॉसेस वाले फीडर्स पर 12 घंटे लोड मैनेजमेंट की जा रही है। मीरपुर खास, कराची, ठट्टा और हैदराबाद ये वो इलाके हैं जिस पे जो है इस वक्त जो गर्मी की शिद्दत उसमें कमी आई है। जो टेम्परेचर है वो 35 से 40 के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है और हवा जो है वहाँ भी खुली हुई है। जबकि जिन इलाकों में हवा नहीं है, खास करके नवाबशाह, दादू और लाड़काना डिवीज़न, वहाँ पे सख्त गर्मी जो है वो की जा रही है और मामूलात ज़िंदगी जो है वो वहाँ पे मुतासर हो रही है। और मुल्क भर की तरह गर्मी की लहर ने रहीम यार खान को भी अपनी लपेट में लिया हुआ है। खुश्क मौसम की वजह से दर्जा हरारत में हर रोज़ इजाफा हो रहा है। रहीम यार खान में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है। तफसील बता रहे हैं इशफाक अहमद। गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा रहीम यार खान के शहरियों के मामूलाती ज़िंदगी को मुतासर कर रहा है। रहीम यार खान में आज दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड है। रहीम यार खान में गर्मी की शिद्दत में इजाफा और दर्जा हरारत बढ़ने से इसकी तहसीलें खानपुर, लियाकतपुर और सादकाबाद में मामूलाती ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं। गर्मी से मेहनत कश और मजदूर तबका सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। गर्मी ने शिद्दत बहुत ज़्यादा पकड़ लिया है और दोपहर को तो बाहर निकला ही नहीं जाता। बहुत ज़्यादा कहर की गर्मी है। या ग्लासेस वगैरह लेने के लिए मैंने अपनी बेटी के लिए लिए है, मैंने अपने लिए लिए है और यानी कि गर्मी से बचने के लिए हम काफ़ी इंतजाम कर रहे हैं। बारिश ना होने और रहीम यार खान का मौसम खुश्क रहने की वजह से दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। शहरी तेज धूप में गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें और अगर धूप में निकलना ज़रूरी हो तो सब ढांप कर निकलें। जिसम में नमकियात और पानी की कमी को पूरा करने के लिए मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। धूप लगने की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है और इसके अलावा हीट स्ट्रोक हो सकता है, जिसमें आजकल हाई टेम्परेचर के साथ डिहाइड्रेशन के साथ लोग एमरजेंसी में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए एहतियाती तदबीर बहुत ज़रूरी हैं। लोगों को चाहिए कि अपने ज़्यादातर काम सुबह के टाइम और शाम के टाइम करें, दोपहर को गर्मी में ना निकलें। ख़ास तौर पे बच्चे और बुज़ुर्ग लोग जो हैं उनको बहुत एहतियात करनी चाहिए। शहरियों को हीट वेव से बचाने के लिए अस्पतालों में हीट स्ट्रोक काउंटर कैंप किए गए हैं। इसके साथ शहर के चौराहों में ठंडे पानी के कूलर और कैंप भी लगाए गए हैं। खातमुल मुरसलीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस में गुस्ताखी करके बीजेपी के रहनुमाओं ने खुद को पस्त साबित किया है।
वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने अपने बयान में कहा कि दुनिया के तमाम इंसानों के लिए रहमत बन कर आने वाले नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक सीरत और किरदार का मुताला करने वाला कोई भी नेकुल फ़ितरत इंसान इनका एहतराम और अदब किए बगैर नहीं रह सकता। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात की शदीद मज़म्मत करते हैं। ये बीजेपी के इंतहा पसंदाना और फितना परवर सोच का एक और सबूत है। आलमी बरादरी बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी और मुक़द्दस हस्तियों के एहतराम की आलमी तहरीक के मनाफी भारतीय हुकूमत के रवैयों और इक़दामात का नोटिस ले। उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की कि भारतीय अक़लियतों ख़ास तौर पर मुसलमानों के बुनियादी हुकूक, मजहबी आज़ादियों और बुनियादी इंसानी हुकूक का मुजरिम है, उसे कटहरे में खड़ा किया जाए। फराह गोगी ने इमरान खान की अहलिया से दोस्ती को इस्तेमाल करते हुए सरकारी ठेकों और ट्रांसफ़र पोस्टिंग से अरबों रुपए कमाए हैं। ये बात तर्जुमान पंजाब हुकूमत अताउल्लाह तारड़ और रहनुमा मुस्लिम लीग नून उस्मा बुखारी ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कही। वसीम सज्जाद की रिपोर्ट देखते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अताउल्लाह तारड़ और नून लीग की रहनुमा आज़मा बुखारी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान ने पिछले 4 साल करप्शन का बाजार गर्म किए रखा। उन्होंने कहा कि इमरान खान के ज़राए आमदन किसी को मालूम नहीं। फराह गोगी इनकी बेनामी थी, जिसके जरिए उन्होंने अरबों रुपए की लूट मार की। अता तारड़ ने कहा कि फराह गोगी ने हीरों के जरिए भी मनी लॉन्ड्रिंग की। दुबई में डायमंड बेचे जाते थे और कहा जाता था हमने ज्वेलरी बेची है जिसके एवज ये पैसे आए हैं। वो पैसे रिश्वत के पैसे होते थे। एक ऑडियो आई है जिसमें यह बात रोजे रोशन की तरह आया हो गई कि किस तरीके से इमरान खान साहब, बुशरा मानिका साहिबा और फराह गोगी का जो ट्रॉयका है, इसने अरबों रुपए कमाए। ये मनी लॉन्ड्रिंग डायमंड्स के जरिए होती थी। करोड़ों के डायमंड बेचे और वो पैसे ब्लैक मनी को वाइट किया गया। अता तारड़ ने कहा कि इमरान खान को चैलेंज करता हूं कि अगर इनका दामन साफ है तो फराह गोगी को वापस बुलाएं, हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाएगी। अज़मा बुखारी ने कहा कि इमरान खान का घर चलाने और गुर्बत मिटाने में फराह गोगी का हाथ है। अज़मा बुखारी ने कहा कि फराह गोगी की ऑडियो लीक से इमरान खान का कच्चा चट्टा सामने आ गया है। आम आदमी की आटा चीनी भी खा गया, आम आदमी के तमाम वसीले भी खा गया और उसके बाद उसकी बस नहीं हुई कि उसने हीरो के जरिए अपनी 2 फ्रंटमैन खवातीन के जरिए जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की। अज़मा बुखारी ने कहा कि अगर किसी को ऑडियो पर शक है तो इसकी फोरेंसिक भी करवाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद वो चोर है जो खैरात भी खा गया। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। साबिक हुक्मरानों की गलत पॉलिसी के बायस मईशत अबतरी का शिकार है। मौजूदा हुकूमत तबाह हाल मईशत को दुरुस्त समत में गामजन करने के लिए इक़दाम कर रही है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे राहिल अंसार। पाकिस्तान को इस वक्त तजारती, करंट अकाउंट और मालियाती खिसारा, रुपए की कदर और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी और महंगाई समेत कई मुआशी चैलेंजेस का सामना है जो मौजूदा हुकूमत को विरसे में मिले हैं। आलमी सतह पर कीमतों में इजाफे के असरात और मुल्क की सियासी सूरत हाल से भी पाकिस्तान की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई है। मौजूदा हुकूमत ने मुख्तलिफ और फौरी इक़दाम के जरिए मईशत को मजबूत बनाने, कीमतों में इस्तेहकाम और बैरूनी और मालियाती शोबे की पायदारी को बरकरार रखने के लिए मुख्तसर वक्त में इक़दाम किए हैं। हुकूमत ने गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया को सस्ते दामों फराहम करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। आटा 400 रुपये फी थैला और चीनी 70 रुपये फी किलो फरोख्त की जा रही है। मुश्किल हालात में हुकूमत माली साल 2022-23 का बजट तैयार कर रही है। वज़ीर आज़म के विजन के तहत इस बजट में सनत, ज़राअत और खिदमात के शोबों समेत तमाम तबकों को रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत कारोबारी शोबे के साथ शराकतदारी को भी यकीनी बना रही है, जिससे सरकारी और निजी शोबों को मुल्क की मईशत की तरक्की में अपना हिस्सा डालने का मौका मिलेगा। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और मुल्क को इस वक्त तवानाई बहरान का सामना है, जिसकी वजूहात और उससे निपटने के लिए इक़दाम के हवाले से रिपोर्ट करेंगे इफ्तिखार अहमद। तवानाई के बगैर इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को पिछले चंद अशरों से तवानाई के बहरान का सामना है, जिसकी वजूहात आलमी मार्केट में ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें, गैस किल्लत, नाकिस तकसीम का निज़ाम और गर्दिशी कर्जे हैं। आबादी में इजाफे की वजह से दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ बिजली की तलब में भी रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इस वक्त मुल्क में बिजली की पैदावार 20,000 मेगावाट है, जबकि तलब 26,000 से 28,000 मेगावाट है। तलब और रस्त में फ़र्क की वजह से शहरियों को लोड शेडिंग का सामना है।
पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़रूरियात बिजली, तेल, गैस, न्यूक्लियर, सूरज और हवा से पूरी करता है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से बिजली की पैदावारी लागत बढ़ रही है। इसके साथ पिछली हुकूमत की तरफ से वक्त पर LNG दरामद न करने और तवानाई के शोबे में इस्लाहात न करने की वजह से कई पावर प्लांट्स बंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो विज़न है उसकी रोशनी में हमारी सबसे पहली तरजीह ये है कि हम पाकिस्तान के तरक्की की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनमें के वाटर रिसोर्सेज हैं उन्हें प्रोटेक्ट करें। 1977 में 60% 65% हाइडल था और 30% थर्मल था, 5% बाकी था। आज 30% हाइडल है, 70% बाकी। ये फर्क है। तेल दुनिया में महंगा होता जा रहा है, ये रीज़न है हम थर्मल पे चले गए। मुस्लिम लीग नून 2013 में जब हुकूमत में आई थी तो उसने तरजीही बुनियादों पर लोड शेडिंग के मसले को हल करने के लिए इकदामात किए और सीपैक के तहत तकरीबन 10,000 मेगावाट बिजली के पैदावारी मंसूबे लगाए। आज एक बार फिर मुस्लिम लीग नून की मखलूक हुकूमत मुल्क को तवानाई बहरान से निकालने के लिए कोशां है। मुल्क में एनर्जी मिक्स को बेहतर करने और मुस्तकिल बुनियादों पर सस्ती और माहौल दोस्त तवानाई के हसूल के लिए दयामर भाषा डैम, मोहम्मद डैम, दासू डैम, नाए गाज डैम, कुरम तंगी डैम, तरबेला तोसीही 5 मंसूबा, हारपो मंसूबा और K4 के साथ सूरज और हवा से बिजली पैदा करने के मंसूबों पर भी काम जारी है। हुकूमत ने सोलर के फ़रोग के लिए इस पर ऑयल टैक्स भी ख़त्म कर दिया है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि इमरान हुकूमत ने IMF के साथ सख्त शराइत पर कर्ज लिया, जिसकी वजह से हुकूमत मुश्किल फैसले करने पर मजबूर है। मुरीद के में मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि चेयरमैन नैब की तकर्री समेत तमाम फैसले इत्तेहादियों की मशावरत से किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शरह खानदगी में इजाफा हमारी तरजीहात में है। नौजवान नस्ल को बेरोजगारी से बचाने के लिए फ़नी तालीम को फ़रोग़ दिया जा रहा है और वतन की हिफाजत पर मामूल पीर महल के नवाही गांव से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के जवान मोहम्मद जैन दहशत गर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए थे। शहीद मोहम्मद जैन को आबाई गांव में फौजी एहसास के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद मोहम्मद जैन को पंजाब रेजिमेंट के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। इस मौके पर ब्रिगेडियर नासिर मलिक और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से फूलों की चादर चढ़ाई गई, जबकि मेजर मोहम्मद जहांसेब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज की जानिब से शहीद के वालिद को कौमी परचम और यूनिफॉर्म दिया गया। इमरान खान के मुल्क मुखालिफ बयानिए के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लोधरा में पाकिस्तान खप्पे एहतजाजी रैली निकाली। रैली डाकखाना चौक से शुरू हुई और लोधरा प्रेस क्लब पर जाकर खत्म हुई। रैली के शुरका ने इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी की। रैली से खिताब करते हुए ज़िले रहनुमाओं ने मुल्की इदारों के खिलाफ इमरान खान के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि इमरान खान ने आलमी साजिश का ड्रामा इसलिए रचाया कि उनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था और हम पाकिस्तान पर किसी भी किस्म की आंच नहीं आने देंगे। इमरान नियाजी ने जो बकवास मारी है पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ और जो उसने हरदा सराई करी है पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, जो पाकिस्तान के इदारों को ख़त्म करना चाहता है और आपस में इख्तलाफात पैदा करना चाहता है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगी। वो इदारों के साथ है, पाकिस्तान है तो इदारे हैं। इमरान खान जो सा है वो किसी एजेंडे पर काम कर रहा है। वो जो कहता है कि मुझे अमेरिका ने हटाया है, उसे किसी अमेरिका ने नहीं हटाया। PPP के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर जाफराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान इमरान नियाजी के मुल्क दुश्मन बयानी के खिलाफ पाकिस्तान खप्पे मोटरसाइकिल रैली निकाली गई और भरपूर एहतजाज किया गया। इस मौके पर सूबाई सदर मीर चंगेज़ खान जमाली और ज़िलाई सदर सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान के मुल्क दुश्मन बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि कोई माई का लाल पाकिस्तान के टुकड़े नहीं कर सकता। पाकिस्तान के टुकड़े करने वाली जबान मोदी की हो सकती है, किसी पाकिस्तानी की नहीं। इमरान खान के मुल्क मुखालिफ बयानी के खिलाफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क भर में पाकिस्तान खप्पे के नाम से रैलियां निकाली। हसन नासिर सिद्दीकी रिपोर्ट करेंगे। इमरान खान के मुल्क मुखालिफ बयानात के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खवातीन विंग कराची डिवीजन और पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से
कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से पाकिस्तान खपे के उन्वान से रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई एम्प्रेस मार्केट पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी ने कहा कि इमरान खान के मुल्क मुखालिफ बयानिए की मजम्मत करते हैं। ये न्याजी अपने आप को क्या समझता है? जब तक पीपल्स पार्टी की एक जियाली बाकी है, एक जियाला बाकी है, कोई पाकिस्तान पे बुरी आंख से नहीं देख सकता। रैली से दूसरे मुकर्रिरीन ने भी खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और अवाम मुल्क के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इमरान खान इस वक्त मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं और अवाम ने उसके मुल्क मुखालिफ बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। खुसूसी तौर पर सोशल मीडिया पे एक घिनौनी मन घड़त मुहिम चल रही है हमारे मुल्क के अहम इदारों के ख़िलाफ़। 75 साल की हिस्ट्री में किसी भी मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म ने इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की बातें, इस तरह की सोच, इस तरह के सोशल मीडिया पे मुहिमें नहीं चलाई हैं। पाकिस्तान की सालमियत के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए हमारे लीडरान ने कुर्बानियाँ दी हैं। पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप ने इस मुल्क के लिए, इस डेमोक्रेसी के लिए अपने जान के नजराने दिए हैं। किसी भी सूरत में ऐसी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिससे मुल्क की साख को या खुदा न खासा मुल्क के खिलाफ कोई साजिश सामने आए। सिंध के दूसरे शहरों हैदराबाद, लाड़काना, सखर, खैरपुर और दीगर शहरों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पाकिस्तान खपे रैली निकाली गई, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की और इमरान खान के मुल्क मुखालिफ बयानिए की मजम्मत की। मुल्क के दूसरे सूबों पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इमरान खान के बयानिए के खिलाफ रैलियाँ निकाली गईं। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। दरबार आलिया मोहड़ा शरीफ के 160वें सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तक़रीबात मरी में इख्तिताम पसीर हो गई। उर्स तक़रीबात में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर से हज़ारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। इख्तितामी तकरीब से सज्जादा नशीन अलहाज पीर औलिया बादशाह फारूक समेत उलमा इकराम और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया। मैक्सिको के दारुल हुकूमत मैक्सिको सिटी में तकरीबन 3000 अफराद कचरे से पौधों के लिए खाद बनाने का काम कर रहे हैं। ये लोग घरेलू कचरे में शामिल अंडों और फलों के छिलके, टी बैग्स और दूसरे नामियाती अज्जा से खाद तैयार कर रहे हैं। इस काम का आगाज 4 साल पहले किया गया था। नामियाती खाद की तैयारी का काम अब मैक्सिको के दूसरे शहरों में भी शुरू हो गया है। ये लोग घर घर जाकर नामियाती कचरा जमा करते हैं और ये कचरा 6 माह तक पड़ा रहने के बाद कुदरती तौर पर खाद में तब्दील हो जाता है। भारत की रियासत उत्तराखंड में मुसाफिरों की बस खाई में गिरने से 26 अफराद हलाक हो गए हैं। ये बस तकरीबन 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। बस में 28 से 29 मुसाफिर सवार थे। जख्मी अफराद को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। तमाम मुसाफिर एक मजहबी मकाम से वापस लौट रहे थे। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस के मज़ाफ़ात में जंगल में आग लग गई, जिसकी लपेट में मुतादिद मकानात भी आ गए हैं। आग से मुतादिद गाड़ियां भी जल गईं। ये आग एथेंस से तकरीबन 16 किलोमीटर के फासले पर जनूबी साहिली इलाकों में भड़क रही है। तेज हवाओं ने आग की शिद्दत को मजीद बढ़ा दिया है। 130 से जायद फायर फाइटर्स, 6 फायर फाइटिंग तैयारों और 4 हेलीकॉप्टरों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ।